برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی عید الفطر بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت نے مختلف مساجد میں نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے سے عید بھی ملے۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی 2 عیدیں منائی گئیں۔ حسینیہ مسجد، سینٹر مسجد، گھمکول مسجد، سلطان بہو مسجد اور قادریہ مسجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے، جن میں بڑی تعداد میں مرد اور بچوں نے شرکت کی۔ سینٹرل مسجد میں ہونے والی عید الفطر کی نماز کے موقع پر حافظ احمد ابراہیم پٹیل نے دین اسلام کی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید الفطر امت مسلمہ کو جہاں آپس میں محبت، بھائی چارے اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، وہیں پر ایسے تہواروں میں اسلام کے مطابق آگاہی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ العظیم جو اہل ایمان رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کی بارگاہ میں اپنی زمین جھکاتے ہیں، اپنی زمینوں کی نیازمندی پیش کرتے ہیں، تو وہ بندے عید والے دن جب آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے سلام کر رہے ہیں۔ حسینیہ مسجد کے خطیب مولانا ظفر عباس نقوی نے کہا کہ عید کا دن اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے اور عبادت کے لیے قیام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ 30 دن تو ہمارا یار تھا، اس سے دور ہے، وہ ہم سے دور تھا۔ اب عید کے دن چھوٹ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ مل کے پارٹی، لیکن یہ نماز عید بتا رہی ہے کہ آج کا دن، عید کا دن اس صورت میں قرار دیا جائے گا جب آدمی اپنے نفس کو پاک کروا لے، یعنی وہ جو ساری محنت کی ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کو ایک دن میں ضائع نہ کر دے۔ 30 دن میں محنت کی ہے، ایک دن میں ضائع کر دے۔ اس دوران لوگوں کے گھروں میں کھانا مہیا کرنے والے کارکنوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پردیس میں دیس جیسا ماحول ہے اور عید کے بعد چٹپٹے اور مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے کی غرض سے انہوں نے اپنی سروس لوگوں کو مہیا کی ہے تاکہ گھریلو خواتین بھی عید کے روز کام سے آزاد ہو کر عید منا سکیں۔ اسپیشل اور مبارک دن تھا۔ ہم نے آج کافی سروس دی ہے تاکہ جو خواتین گھر میں ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ ان کو کوئی چیز کوکنگ نہ کرنی پڑے، اور ہم نے تمام فوڈ یہاں پہ بنایا اور ان کو سرو کیا۔ لارڈ میئر کونسلر محمد عظیم نے قادریہ مسجد میں، جبکہ سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے حسینیہ مسجد میں نماز عید ادا کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ والسل کی تمام مساجد میں مذہبی عقیدت و احترام سے عید الفطر ادا کی گئی، جن میں ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ عرفان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ کہ انسانیت کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ اللہ کی اس کتاب عظیم کا نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی صورت میں ہماری زندگیوں کا ایک دستور اور نظم العین ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی مسلمانوں نے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منائیں۔ عید کے بعد مسلمان بھائی ایک دوسرے کو گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر علماء کرام اور دیگر کا کہنا تھا کہ عید خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر غربا کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا عید جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں دھوم دھام سے منانے چاہیے۔ ہمیں ہمارا جو اسلام مذہب ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اسلام جو ہے یہ ہمارا جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے۔ آج کے دن ہمارا تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے پیغام محبت ہے، پیغام امن ہے، اور عید کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں پیار محبت سے، اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کر کے اور مخلوق خدا کی مدد کر کے اس موقع پر علامہ ریاض احمد اور علامہ حافظ سعید احمد نے خطبہ دیا اور امت مسلمہ بالخصوص ملک پاکستان کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمان ممالک کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لوٹن میں عید الفطر کا مرکزی اجتماع جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ میں ہوا، جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صفدر بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔
लुटन की जामिया इस्लामिया गौसिया में कम्युनिटी की सहूलत के लिए मुख्तलिफ औकात में 3 जमातों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और एक दूसरे से गले मिले और खुशियों का इजहार किया और उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर शुरका का कहना था कि माह रमज़ान इन्हें इसार और कुर्बानी का दर्स देता है और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के इख्तिताम पर खुशी के इजहार के लिए ईद की सूरत में मिल बैठने का मौका मिलता है। इनका मजीद कहना था कि इस मौके पर इन्हें इन गुरबा और मसाकीन को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जो किसी वजह से शामिल नहीं हो सकते। स्कॉटलैंड के दूसरे शहरों की तरह एडनबरा में भी नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। मौलाना मोहम्मद सरवर मदनी ने अपने खुतबे में माह रमज़ान की बरक़ात और ईद उल फितर पर रोशनी डाली। खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। एडनबरा के मरकजी मरकज में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से अदा की गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने आपस में मुसाफा किया और गले मिले। मुसलमान कम्युनिटी का इस खुशी के मौके पर कहना था कि रमजान के बाबरकत महीने का मकसद इस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ईद की खुशियों में गुरबा और मसाकीन को शामिल ना किया जाए। उम्मत मुसलमान को जो मसाइल दरपेश हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने फ़ज़ल से मुसलमानों के ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो उम्मत मुसलमान के मसाइल हैं वो गज़ा की शक्ल में है, फ़लस्तीन की शक्ल में है, सीरिया के मुहाजिरीन की शक्ल में है। अल्लाह तबारक व तआला इन मुल्कों के अंदर अमन कायम कर दे अपने फजल से। जितनी भी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी नू, सारे बांग्लादेश कम्युनिटी जिन्हें भी इतने टर्किश कम्युनिटी सारे नू ईद मुबारक। हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं पाकिस्तान में। हम चाहते हैं कि हमारी खुशियाँ और उनकी खुशियाँ उनके बराबर हों इंशाल्लाह। Eid Mubarak from everyone at Dunfermline Mosque. We had a great day here. Everyone's come for Eid Namaz and we're going to go out in the Scottish rain and enjoy the rest of the day. So Eid Mubarak to everyone. मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से सारे तमाम मुसलमान को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मौलाना सरवर मदनी का कहना था कि गैर मुस्लिम ममालिक में रहकर इस्लाम को जिंदा रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि अपने बच्चों को मसाजिद में भेजें और नमाज की पाबंदी करवाएं। नौजवानों, अपनी एनर्जी जो है वो इस्लाम की तरफ मस्जिद को कायम करो, इबादत के लिए मस्जिद में आकर बैठो, कुरान की तिलावत करो, नफली इबादत करो। ये जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं, नफल पढ़ते, इसका बेनिफिट क्या है? इनका मजीद कहना था कि इस्लाम को जिंदा रखने के लिए मुसलमानों को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को जिंदा रखना पड़ेगा। वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों पर देनी चाहिए। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में ईद जोश व जज्बा के साथ मनाएगी। बच्चों, बड़ों, सब लोगों ने अपने मुसलमान ममालिक के लिए अपने पाकिस्तान की दुआएं मांगी। खालिद पेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। प्रदेश में देश की खुशबू। मलेशिया में पाकिस्तानियों की ईद मिलन तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुआलालंपुर में पाकिस्तान हाउस और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़रिए एहतमाम रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनका अहवाल जानेंगे जावेदुर रहमान से। मलेशिया के दारुल खुलाफा कुआलालंपुर में रहने वाली मुकामी आबादी का 70% हिस्सा ईद उल फितर मनाने के लिए अपने आबाई शहरों का रुख करती है, जिसकी वजह से इन दिनों कुआलालंपुर शहर और गिरदुनवा की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम नजर आती है। कुआलालंपुर में दियारे पाकिस्तान कम्युनिटी ईद मिलन की दावतों और तकरीबात का एहतमाम करती है। ईद मिलन पार्टी की मरकजी तकरीब कायम मुकाम सफीर मियाँ आतिफ शरीफ की ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तान हाउस कुआलालंपुर में हुई और दूसरी बड़ी तकरीब मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद असलम अल मारूफ असलम भाई के मेज़बानी में मुनक्कद की गई। चिकन टिक्का, बारबेक्यू, कबाब, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त, पूरी, दही भल्ले, गुलाब जामुन और अनवाओ इकसाम के पाकिस्तानी रवायती खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। पाकिस्तानी मलबूसात से तन किए शुरा, पाकिस्तानी रवायती पकवान, ईद मुबारक के पैगामात और बच्चों में ईदी बांटने के हसीन लम्हात ने दियारे गैर में वतन अजीज़ पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी। सफारत खाना पाकिस्तान मलेशिया की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को और तमाम समंदर पार पाकिस्तानियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक तरफ से और मलेशिया में मौजूद तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सबको ईद मुबारक। मुबारक पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Eid Mubarak to all my homeland citizens from Malaysia, Sikandar Ali Shah. मलेशिया से पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक हो।
by wishing all our Pakistani brothers a very happy Eid Mubarak and all the brothers in Pakistan. Pakistan, Eid Mubarak to every Pakistani. I wish all of you, the Pakistanis either in Malaysia or in Pakistan, a happy and prosperous Eid al-Fitr. तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक। खुशियाँ और मोहब्बतें बांटी। इन तकरीबात में मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी और मलेशियन फैमिलीज़ के अलावा पाकिस्तान के कायम मुकाम सफ़ीर मियाँ आतिफ शरीफ, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर अल्तमश जंजुआ, हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन, फर्स्ट सेक्रेटरी गुलाम हैदर, वीज़ा काउंसलर मोहम्मद इफ़जाल ताहिर, डिफेंस अताशी कमोडोर बिब्रार इसहाक, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातू नज़ीर, मिरासलाम और मलेशिया में तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा और तालबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। ईद के पुरमसरत मौके पर लेबर अफेयर्स दुबई के ओहदेदार अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मजदूरों की तीमारदारी की और उनमें ईद के तोहफ़े भी तकसीम किए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। ईद के पुरमसरत मौका पर दुबई हुकूमत ने मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल कायम कर दी। दुबई हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि जिन मजदूरों की दिन रात मेहनत से दुबई आज तरक्की की जो मनाजिल तय कर रहा है वो इन्हें नहीं भूले। ईद के दिन जनरल कोऑर्डिनेटर ऑफ परमानेंट कम्युनिटी ऑफ लेबर अफेयर्स हुकूमत दुबई अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने दुबई के मुतादिद अस्पतालों का दौरा किया और वहाँ पर ज़ेरे इलाज मजदूरों के साथ ईद का दिन गुजारा। इनकी काविशों को सराहा। इस मौके पर हुकूमत दुबई और अदारे के अहम ओहदेदारान इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर जनरल कोऑर्डिनेटर ऑफ परमानेंट कम्युनिटी ऑफ लेबर अफेयर्स हुकूमत दुबई अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने राशिद अस्पताल में ज़ेरे इलाज मजदूरों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हुकूमत दुबई और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के विजन के मुताबिक वो मजदूरों के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। मजदूरों को कोई भी मसला या मुश्किल हो तो वो अदारे को कॉल करें, वो हर मुमकिन मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ईद की खुशियाँ ज़ेरे इलाज मजदूरों के साथ बांट रहे हैं। हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग हमेशा लेबर का साथ होना चाहिए। ख़ासतन तौर पर कोई आदमी गिर गया है ऊपर से, कुछ आदमी एक्सीडेंट हो गया है, जो भी हालात हैं हम लोग लेबर का साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये हमारा गवर्नमेंट का विजन है, ये हमारा परमानेंट कम्युनिटी लेबर अफेयर्स इन दुबई का विजन है हमेशा कि हमेशा हम लोग का साथ है। रमज़ान के अंदर, इफ्तार के बाद, ईद का अंदर हमेशा लोग का साथ, ये हम लोग का विजन है जैसा मैंने बोला, और ये हमारा का फ़र्ज़ है। उन्होंने मजदूरों के नाम अपने पैगाम में कहा कि लेबर और सेफ्टी कवानीन की पासदारी करें क्योंकि हुकूमत दुबई को इनकी कीमती जान की ज़्यादा अहमियत है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुनिया भर की तरह थाईलैंड में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। देखेंगे इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाते हैं। बैंकॉक में सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया जिसमें तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत दी गई और पुरतकल्लुफ़ पाकिस्तानी पकवानों का भी अहतमाम किया गया जिसमें मुतादिद पाकिस्तानियों ने शिरकत की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर तुर्की के सफारत खाना से भी सफ़ीर ने शिरकत की। प्रदेश में जहाँ पर लोग एक जुदागाना ईद गुजारते हैं और इनको खास मिल बैठने का खास मौका नहीं मिलता, वहाँ पर सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की जानिब से ऐसी तकरीब मुनक्कद करना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। तकरीब के आखिर में शुरका ने सफीर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में दरामदात सिफर पर थीं। रज़ाक दाऊद की बेहतरीन पॉलिसीज़ के बायस बरामदात में इजाफा हुआ। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो ख़ुद मुल्की मफाद में सख्त फ़ैसले करते हैं। उन्होंने ये बात लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। बड़ी हेरिटेज है, बहुत पुराने चैम्बर्स हैं, इनमें बड़े कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन भी रह चुके हैं। तो मैं इन चैम्बर्स को रीच आउट करता हूँ कि ये आएँ और पाकिस्तान में भी तवज्जो दें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँ और पाकिस्तान को मतलब है कि यहाँ भी फैलाएँ, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान अब मौका है प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे लगने का और उनको दिखाने का कि जी वाकई उनका सबसे बड़ा असासा पाकिस्तानी है। रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आगाज़ हो गया जिसमें दुनिया भर से हज़ारों माहिरीन और बड़ी कंपनीज के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए।
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकॉनमी फोरम 1997 से शुरू होने वाला एक मारूफ बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और कारोबारी फोरम बन चुका है जो हर साल रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़्क़द होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में 3 रोज़ा इंटरनेशनल फोरम में दुनिया भर से 10,000 से ज़ायद माहिरीन और बड़ी कंपनियों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं, जबकि दीगर ममालिक के वज़राए आज़म, गवर्नर्स और दीगर आला ओहदेदार भी इस फोरम में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग फोरम में शिरकत के लिए रूस पहुँच चुके हैं। इस फोरम में आलमी मईशत को दरपेश मसाइल, कारोबार बढ़ाने और लागत को कम करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत आपस में मुलाकातें भी करेंगे। सरमायाकारी के हवाले से ये रूस का सबसे बड़ा इवेंट है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। फोरम में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इंटरनेशनल इश्यूज और आलमी इक्तिसादी मामलात पर बहस करने के लिए ये एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये फोरम 8 जून तक जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन भी इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में मौजूद हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने के एजाजी कौंसल जनरल अब्दुर्रऊफ रिंद से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, जो दुनिया भर से जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बिजनेसमैन यहाँ आए हुए हैं और आज इसका आगाज़ हो गया। 3 रोज़ ये जारी रहेगा ये फोरम। और मेरे साथ मौजूद हैं सेंट पीटर्सबर्ग में पाकिस्तानी सफारत खाने के एजाजी कौंसल जनरल अब्दुर्रऊफ रिंद साहब। इनसे पूछते हैं, इस फोरम की तफसीलात से आगाह होते हैं। जी बिल्कुल, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, ये हर साल तकरीबन जून के महीने में होती है। ये वर्ल्ड की जो दूसरी बड़ी इवेंट्स है इकोनॉमिकल। इसमें तकरीबन दुनिया के बहुत से जैसे प्रेसिडेंट्स, बिजनेसमैन इसमें शिरकत करते हैं और इस साल भी तकरीबन 140 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें ऑफिशियल्स हैं। सबसे एक छोटी सी मिसाल ये है कि इसमें जो कल की जो सेरेमनी है उसकी जो ओपनिंग है वो कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और चाइना के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, मालदोविया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। इसी हिसाब से बहुत से मुल्कों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और कल्चर जो वो हैं उनको बढ़ाने के लिए कि जी इनको आगे बढ़ाई जाए। और इसमें इसी जो इंटरनेशनल फोरम है जिसमें साइन किए जाते हैं बहुत बड़े MOUs। तो इस साल भी मेरे ख्याल में 17,000 से लोग, उसमें ज़्यादा से लोग आए हुए हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, जो टॉप के और उस हिसाब से। और ये 3 दिन जारी रहेगी और 8 जून को उनकी आखिरी दिन है। तो अब्दुर्रऊफ साहब, ये बताइएगा कि 140 से ज़ायद ममालिक के यहाँ नुमाइंदगान, यहाँ बड़े बड़े अफसरान, आला अहदेदारान और बिजनेसमैन शरीक हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस बार नहीं देखने में आ रही। इसकी क्या वजह है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी उनमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए था। ये कह सकते हैं बदकिस्मती है या क्या है, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेटफार्म है जिसमें बहुत सी चीज़ें इजीली हो सकती हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल ये है कि यहाँ पे बहुत से रशियन रीजन्स हैं जहाँ हिस्सा ले रहे हैं, उनके स्टॉल्स हैं, जिससे इसीलिए हमारी कल्चर, ट्रेड हम उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस साल तकरीबन पिछले 5 साल से डेलीगेशन आ रहे थे, जिसमें मिनिस्टर लेवल के, फेडरल मिनिस्टर के, पिछली बार चैम्बर फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे 3। इस साल भी हम लोगों ने उनको क्या कहते हैं इनविटेशन भेजे थे, शायद कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले साल एक भारी क्या कहते हैं इसके साथ डेलीगेशन के साथ ये आएंगे और इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और इससे हमारी जो ताल्लुकात हैं रशिया और पाकिस्तान की बहुत आगे इंशाल्लाह बढ़ेगी। जी, आप सुन रहे थे अब्दुर्रऊफ रिंद साहब फरमा रहे थे कि ये 140 से ज़ायद ममालिक यहाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 17,000 से ज़ायद अफराद यहाँ इस फोरम में शरीक हैं, लेकिन पाकिस्तानी नुमाइंदगी ना होने की वजह से जनाब अब्दुर्रऊफ रिंद भी मायूसी का शिकार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल इस फोरम में पाकिस्तान से भरपूर तरीके से नुमाइंदगी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपना इसमें पार्टिसिपेट करके अपने इक़्तिसादी तौर पे जो मामलात हैं उनको यहाँ डिस्कस करेगा। जी
برسلز میں پختون آرگنائزیشن بیلجیم اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے اشتراک سے پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر پختونوں کی بڑی تعداد پاک فوج کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ ڈاکٹر کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ پختون آرگنائزیشن بیلجیم اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے اشتراک سے بیلجیم کے دارالحکومت میں پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا مقصد پشتون تحفظ موومنٹ کے نام پر یورپ میں پاکستانی مخالف پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ فوج پاکستان نے دہشت گردی کا صفایا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا امن بحال ہوا ہے اور یہ بات پاکستان کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے وہ پیسے دے کر یورپ میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن مہم چلا رہے ہیں، لیکن ہم ان کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔